90% of the difference between a bad person's code who doesn't know anything, doesn't study anything, and a rock solid, rock star programmer's code who studies every day, practices writing code every day, 90% of the difference is going to be that the guy who studies and practices every day would have named things after a lot of thinking. Naming is everything. Say it again. That is 90% of the difference between a programmer who sucks and a programmer who's worshipped. It doesn't matter how much C# you know. Okay, सबसे पहले मैं एक स्टॉक टिकर क्लास लूंगा, या उससे भी पहले एक पर्सन क्लास ले लेते हैं. पर्सन क्लास में क्या क्या होना चाहिए? कुछ भी हो. पर्सन के कई एट्रीब्यूट्स होंगे, हमें उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है. अभी जब हम कुछ डिजाइन करते हैं, हम वो देखते हैं कि इस सिचुएशन में क्या रेलेवेंट है. इस सिचुएशन में पर्सन की कोई प्रॉपर्टी रेलेवेंट नहीं है, सिर्फ उसमें हमें एक मेथड चाहिए जो लिसनर हो. सो हमें एक मेथड रखना है जिसको हमने कॉल करवाना है जब प्राइस चेंज हो. उस मेथड का नाम क्या रखें, बाद में बात करेंगे इसकी. अभी मैं उसका नाम कुछ भी रख रहा हूं. We'll come back to this method to correct the return types, the arguments, the name of the method. All of these things are very important, but in a while. For now, let's just leave it. Let's go to the stock ticker class. This is a stock ticker. It has a name and a price. Again, it will have many properties, but right now what's relevant is the name of the company and प्राइस. फिर एक डेलीगेट टाइप होगा, तो उसके लिए एक अलग क्लास बनाते हैं. उसको कुछ भी नाम दे रहा हूं. अभी मैं कोई भी नाम दे रहा हूं इसको. और इसकी भी क्या सिग्नेचर होगा बाद में बात करेंगे, बाद में सोचेंगे. ठीक है, इसका नाम भी मैं डेलीगेट नेम लिख रहा हूं, या डेलीगेट नेम लिख रहा हूं इसका नाम. नेक्स्ट, so let's go into the stock ticker and create a public instance of the delegate, which was called delegate name, and I'll just say delegate instance. Now, I want to talk a little bit about the names. Please write this down with blood. The way you name something is going to make a world of difference to your code. 90% of the difference between a bad person's code who doesn't know anything, doesn't study anything, and a rock solid, rock star programmer's code who studies every day, practices writing code every day, 90% of the difference is going to be that the guy who studies and practices every day would have named things after a lot of thinking. वो एक छोटी सी छोटी चीज का नाम भी लेने से पहले आधा घंटा लेके सोचता है क्या नाम लूं. अब आप सोचोगे ऐसा क्यों करता है? क्योंकि नाम सही ना लेने से आपके बाद हर बंदा जो आपका कोड देखेगा, वो अगर आधा घंटा लगना चाहिए आपका कोड समझने में, अगर वो कोड सही होता तो वो 2 हफ्ते लगाएगा. क्योंकि एक नाम आप गलत नहीं दोगे, आपकी तो हैबिट है हर चीज का गलत नाम दोगे ना. अगर स्टॉक का नाम आपने रखा हुआ है स्टॉक IMPL, स्टॉक IM, और कैट का नाम रखा हुआ है कैट डेटा और एक्सेस ऑब्जेक्ट डाओ, बिजनेस एक्सेस ऑब्जेक्ट बाओ, ऐसे नाम रखे हुए हैं जो कि अक्सर मैं देखता हूं रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में. मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट इज इन figuring out what the code does, and that is because most programmers don't take time to name things properly, and those that do, if you download open source projects, they all would have named everything nicely.
or just look inside the Microsoft .NET framework. So naming is everything. Repeat, repeat, repeat. Naming is everything. Everybody say this. Naming is everything. Say it again. इसको बार बार दोहराओ. अपने जब कोड लिखने बैठो, think about names. That is 90% of the difference between a programmer who sucks and a programmer who's worshipped. I'm telling you, that's a very small thing, and it makes all the difference. It doesn't matter how much C# you know. If you name things correctly, you are on the way to make that 90% jump. Okay? Now, what is this delegate? ये delegate क्या बताना चाह रहा है? जो ये पब्लिक है, यानी कि जो भी बंदा स्टॉक टिकर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा और डॉट करेगा, स्टॉक टिकर इक्वल्स न्यू स्टॉक टिकर डॉट, तो उसको ये डेलीगेट नेम दिखाई देगा. तो उसको जब ये दिखाई देगा तो उसको पता चलना चाहिए कि ये डेलीगेट को मैं सब्सक्राइब करूं या ना करूं. और वो तभी पता चलेगा जब ये डेलीगेट अपने नाम से ही बताएगा कि मैं किस लिए हूं, मैं क्या इंफॉर्म करता हूं लोगों को. तो डेलीगेट्स के नाम रखने के लिए एक चीज ध्यान रखिए, देयर इज अ कन्वेंशन. ऑलवेज नेम योर क्लासेस एज नाउन्स, एंड अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, a place or a thing. So examples of nouns would be Ram, Sham, horse, Noida, Delhi are nouns. Chair, these are good candidates for naming a class, including a delegate, because a delegate is a class actually. If the whole purpose of a class would be to write to a file, you would name it file writer. Okay? And similarly, the whole purpose of this delegate is to inform other people that, hey, the price has changed. So, what would be a good noun to describe a person who tells everybody that the price has changed? Price changer means someone who is going to change the price. Status price is not a noun. Ticker changer are a price ticker. No, that's the ticker itself. New price, nahi. New price, while it is a noun, it does not denote. It's like saying, इस बच्चे का नाम मुझे सही से मिल नहीं रहा, तो इसको नाम रख देता हूं कि आदि मानव. It's close, but it's not exactly what. तो ये price changed alert is a good candidate. Or current price is a noun, same thing. Current price is a noun, but the delegate does not mean current price. It means a person who will tell someone, look, price has changed. So I could, if I were to come up with the name, it would be like price changed informer, price change informer, or some such thing. Now all these names don't quite sound very nice. And it is for this reason that there are certain guidelines for naming a delegate. When you name a delegate in any scenario, you will name it as a noun. But when you name a delegate in an event scenario where you want to publish events and you're using a delegate in this scenario, you will make a departure from that rule. Okay? What you will name a delegate as is, you will name it in this league, in this vein. Oh, look, something changed. So, in this case, we'll say, price changed. That's a name for this delegate. If you were writing a delegate to issue an event that the flight has been delayed, you would name that delegate as flight delayed. And if you look at the .NET framework, there are events like button clicked, mouse moved. Next thing, when the price changes, स्टॉक टिकर की प्राइस की प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, तो उस प्रॉपर्टी के सेटर के अंदर, दैट इज द प्लेस व्हिच इज द ट्रिगर पॉइंट. Since I have to implement the setter myself, I'll have to take a field, a backing field, to represent this property. Okay? So I'll have to take a private decimal price and write the getter and setter myself.
and here I'll have to say price equals value. Now this is the point in time where the price is actually changing. So over here I will fire this delegate. As soon as I change the price, I'll fire this delegate. I'll say delegate, sorry, what was that? Price changed. Price changed. इसको fire कैसे करते हैं? ऐसे जैसे मेथड कॉल करते हैं ऐसे ही लिखते हैं इसको. So what is the only step remaining? Associate. So let's go to the main method, which is the glue code. And we'll say, please create a person object first. And this person is interested in the delegate. So I'll say, create a stock ticker for Microsoft. And set its initial price to say 32 decimal. I created a stock ticker and a person, and I just initialized the stock ticker with a price. अब मैं ये कहने जा रहा हूं कि जब ये stock ticker की price change हो तो please person class का call me method को call कर देना. उसको कहने के लिए हम कहेंगे ये स्टॉक टिकर का ये डेलीगेट इंस्टेंस है इक्वल्स, जैसे डेलीगेट कोई भी क्लास का इंस्टेंस कैसे बनाते हैं, न्यू क्लास का नाम है ना, और यहां पे मेथड का नाम दे देंगे पर्सन क्लास का कॉल मी मेथड. सिर्फ नाम देंगे, कॉल नहीं करेंगे. इस कॉल मी को कॉल नहीं करेंगे, सिर्फ नाम देंगे. याद है ये कॉल मी मेथड के बाद मैंने पैरेंथेसिस नहीं लगाए, मैं सिर्फ नाम दे रहा हूं कि कॉल मी मेथड को तब कॉल करना जब भी प्राइस चेंज हो. लेट्स पुट अ ब्रेक पॉइंट हियर एंड सी व्हाट हैपेंस इफ आई रन दिस कोड नाउ. बस एक पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा इसमें. इसको अगर मैं स्टेप ओवर करता हूं, नथिंग स्पेशल हैपेंस हियर. Then I initialize a stock ticker. क्या अभी कुछ डेलीगेट वगैरह फायर होगा? देखते हैं, इसको स्टेप इन करके देखते हैं. देखो जब ये मैं इनिशियलाइज कर रहा हूं, प्राइस नेम और प्राइस प्रॉपर्टीज इनिशियलाइज हो रही हैं, यानी कि इनके सेटर्स में कंट्रोल जा रहा होगा, तो प्राइस के सेटर में भी जा रहा होगा कंट्रोल. तो देखते हैं क्या होता है. वहां तो डेलीगेट इन्वोक हो रहा है, तो देखते हैं कि इसके अंदर अगर हम जाते हैं, पहले तो ये प्राइस के अंदर गया और इसने कहा प्राइस इक्वल्स वैल्यू, फिर इसने कहा प्राइस चेंज्ड. कौन मुझे बताएगा कि ये क्या चीज, ये क्या हो रहा है यहां पे? ये हमने बात किया है, आंख खड़े करके बताओ. एग्जैक्टली ये डेलीगेट इंस्टेंस इन्वोक हो रहा है ना. अब वो इंस्टेंस इस वक्त किस चीज को पॉइंट कर रहा है? हाँ जी आप बताओ. प्राइस चेंज को पॉइंट कर रहा है. और कोई कुछ अलग बताना चाहता है? क्या वो एसोसिएशन प्राइस चेंज डेलीगेट इंस्टेंस में और कॉल मी मेथड में हो चुकी है? नहीं. तो अभी जो प्राइस चेंज डेलीगेट इंस्टेंस है वो किस चीज को पॉइंट कर रहा होगा? नथिंग. इट्स पॉइंटिंग टू नथिंग, व्हिच मींस इट विल हैव द वैल्यू नल, व्हिच मींस इफ वी गो बैक हियर जहां पे हमने रोका हुआ है कंट्रोल, और ये इन्वोक करूं, इट विल गिव यू एन एक्सेप्शन सेइंग null reference. Man, I don't know what do you want me to call? There's nothing I'm pointing to. Is this making sense? So let's try and let's see that. It's exactly what happens. It says object not set to a reference. ये price change association में नीचे बना रहा हूं, उससे पहले प्राइस प्रॉपर्टी सेट हो रही है, और प्राइस प्रॉपर्टी के सेटर के अंदर वो डेलीगेट इन्वोक हो रहा है, और वो डेलीगेट फट रहा है क्योंकि वो किसी चीज को पॉइंट ही नहीं कर रहा. तो वहाँ पे इफ कंडीशन लगा कर लिखना पड़ेगा. हाँ आप खड़े होकर सबको बताएंगे कहां पे इफ कंडीशन लगाएं. जहां फंक्शन लिखे थे दूसरी फाइल में
हाँ जी, नीचे, हाँ जी, वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम सर? अमरदेव दुबे। अमर देव दुबे। देव दुबे। अमरदेव दुबे के लिए तालियां बजा दीजिए। एक सिंपल सी बात करें, हम यहाँ एक कंडीशन क्यों ना लगा दें? इफ कंडीशन, इफ दिस इंस्टेंस इज नल, तो कुछ मत करो, नहीं तो ये इन्वोक करो। हम अगर घुमा के ये लिख दें कि प्राइस चेंज्ड इंस्टेंस, प्राइस चेंज एक इंस्टेंस है ना किसी ऑब्जेक्ट का, अगर वो नल नहीं है तभी उसको कॉल करो, नहीं तो भैया मत करना क्योंकि एरर आ जाएगा। अगर मैं इसको रन करूं तो अभी आएगा प्राइस इज चेंज्ड, हमने कोई प्राइस चेंज की और वहां गया। अब ये मैसेज बड़ा हेल्पफुल नहीं है, क्यों ये हमें ये नहीं बता रहा किस चीज की प्राइस हुई, आलू की, मूली की, भिंडी की, गोभी की, या माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक की, या किसके स्टॉक की। सो इट शुड रियली टेल अस, बॉस प्राइस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन स्टॉक हैज चेंज्ड फ्रॉम 32 to 10। तो इस मेथड को हम कुछ पैरामीटर्स दे देते हैं। अब सवाल ये उठता है क्या पैरामीटर्स दें, तो उसका जवाब ये है भाई हमें क्या क्या इंटरेस्ट है, हमें हम किस किस चीज में इंटरेस्टेड हैं यहां प्रिंट कराने के लिए, वो पैरामीटर दे देते हैं। पहले तो स्टॉक का नेम, फिर प्राइस, ओल्ड प्राइस, न्यू प्राइस, तीन चीजें दे देते हैं। सो स्टॉक का नेम स्ट्रिंग होगा और डेसिमल ओल्ड प्राइस और डेसिमल न्यू प्राइस। और अगर हम यहां ऐसे मैसेज चेंज कर दें, द प्राइस ऑफ द स्टॉक ऑफ this company has changed from this to this। यहां लिख दें कंपनी नेम, यहां ओल्ड प्राइस और यहां न्यू प्राइस, है ना। लेकिन ये पैरामीटर्स डाल तो दिए, कोई ना कोई पास तो करेगा इनको, तो कहां से पास कराएं फिर? जहां प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। आपका नाम क्या है? अतुल, के लिए तालियां बजा दीजिए। जहां प्रॉपर्टी चेंज हो रही है वहां जाके पैरामीटर पास करेंगे। तो प्रॉपर्टी कहां चेंज हो रही है? स्टॉक टिकर में। यहां पे अगर हम डाल दें लेकिन ये डेलीगेट हमें डालने नहीं दे रहा, ये कह रहा है कि ये मैं तो कोई आर्ग्यूमेंट्स लेता ही नहीं हूं। डेलीगेट में डालना होगा। तो पहले हम डेलीगेट में जाएंगे और उसका सिग्नेचर चेंज करेंगे। अभी आपने बोला कि पॉइंटर और रिफरेंस, तो सर ये हीप मेमोरी से लोकेट करेगा कि स्टैक मेमोरी से लोकेट करेगा? तो बैठ जाओ, उसके लिए 1 घंटा मुझे समझाना पड़ेगा सबको कि क्या है। बैठ जाओ, बाद में बता दूंगा। एंड द क्वेश्चन इज नॉनसेंसिकल ऑनेस्टली। बड़ी बड़ी बातें मत करो यार, ऑनेस्टली। सिंपल सी बात है। स्टैक क्या होता है? डिफरेंट पॉइंटर होता है, जैसे कि रबिश, ओके, यस, समवन हैड अ क्वेश्चन सर। सर अगर ऐसा करना हो, ओके, नाउ सॉरी, आई वाज अ लिटिल, आई शुड, एज अ टीचर आई शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल। मुझे ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए। आप सबके सवाल, और ये मुझे खुशी है जब भी कुछ कोई सोचने पर मजबूर करता है तो ये ऊटपटांग के सवाल भी आते हैं शुरू में। जितना अब जो जिम्नास्ट ट्रेंड हो वो अलग तरीके के सवाल पूछेगा, और मेरे जैसा बंदा इसने कभी जॉगिंग ही ना की हो वो जिम्नास्टिक की क्लास में जाके अलग तरीके के पूछेगा कि सर मैं वहां से लटक जाऊं तो क्या रिजल्ट आएगा, कितने देर में पतला हो जाऊंगा। तो ये अभी ये बट खुशी की बात यह है कि सवाल आ रहे हैं, सोचा जा रहा है कुछ। तो कुछ सवाल बेढंगे हैं लेकिन इसमें आपकी गलती नहीं है। असलियत में हमारी दुविधा यह है कि कोई पढ़ाने वाला ढंग का नहीं है, और कोई ऐसा नहीं जो तोड़ तोड़ के सरल भाषा में हमें ये बता दे कि इसका मतलब है। सारी किताबें अंग्रेजी में हैं, ज्यादातर ऐसी अंग्रेजी जो हमें नहीं समझ में आती। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो बैठ के एक एक चीज बहुत बारीकी से जानता और छोटी छोटी चीज को टाइम लेकर समझाए। तो आपकी दुविधा समझता हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं ज्यादा से ज्यादा ऐसी क्लासेस करने की। आप संपर्क में रहिए, कोई ना कोई क्लास में मैं सारा समझाऊंगा डिटेल में स्टैक क्या होता है, हीप क्या होता है। और अभी वो सवाल
असलियत में ज्यादा मायना नहीं रखता यहां पे, मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन तो दूसरा आपका सवाल था कि अगर मैं इस डेलीगेट को कहीं और ऐसे फंक्शन से पॉइंट कराना चाहूं जिसका सिग्नेचर नहीं मिलता तो क्या करूं सर? ये भी वही सवाल है बेतुका सा। मैं सर वहां अटक जाऊं तो, अरे भैया नहीं करा तो कोई और डेलीगेट ले लो। मैं पूछता हूं क्यों कराना चाहोगे? तो उससे मतलब मल्टीपल डेलीगेट्स होंगे, फिर मेमोरी मिलेगी, मतलब सबको मेमोरी एलोकेट होगी, फिर फायदा क्या रहेगा? पहले अपना सवाल ठीक से वर्ड करो, फ्रेज करो और समझाओ। पहले खुद सोचो क्या पूछ रहे हो। आपके पास मल्टीपल फंक्शंस है अलग अलग सिग्नेचर के। हाँ, मैं डेलीगेट एक ही बनाना चाहता हूँ, मतलब ऐसा डेलीगेट बनाना चाहता हूँ कि वो सारे को वो इसीलिए कह रहा हूं, मैं आपका सवाल समझ गया था और ये इसलिए बेतुका है क्योंकि मैं आपको समझा नहीं सकता कि इसलिए बेतुका है, बट इस ये बिलीव मी, अभी हम ना आइसोलेशन में एक बहुत छोटे से बारीक चीज को देख रहे हैं। अब तो इसलिए सवाल उमड़ उमड़ के इधर उधर से आ रहे हैं। कुछ आपकी इंटेंशन सही है, बट ये सब आपकी अपनी करंट लेवल ऑफ एक्सपर्टीज दर्शाते हैं और ये भी बताते हैं कि आपने कितना कोडिंग की है अकेले बैठ के, विच इज फाइन। सिर्फ आपकी हालत नहीं है, पूरी इंडस्ट्री में यही हालत है, बट दैट्स ओके। द आंसर रियली इज यू विल नेवर डू दैट। A delegate is meant to point to a certain signature, it can only point to that, और उसमें कोई मेमोरी वेस्ट नहीं होगी अगर आप एक और डेलीगेट ले लोगे। इट्स लाइक टेकिंग अनदर वेरिएबल। कोई प्रोग्राम स्लो नहीं हो रहा आपका, ठीक है? ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट तो लगा सकते हैं। एक मिनट, हाँ, जो पैरामीटर पास करते हैं जेनेरिक हो सकते हैं। जो पैरामीटर पास करते हैं क्या वो जेनेरिक हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। हाँ 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 हाँ, अगर किसी डेलीगेट, जेनेरिक डेलीगेट कोई अलग चीज नहीं होती। अगर किसी डेलीगेट में हम जेनेरिक पैरामीटर पास करते हैं उसी डेलीगेट को जेनेरिक डेलीगेट बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी, आप कुछ पूछ रहे थे सर? ओवरलोडिंग या ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट कुछ भी मतलब नहीं यहां से, कुछ नथिंग। जस्ट कम टू माय क्लास सम अदर टाइम अबाउट अदर थिंग्स, ओके। सो दिस इज अ delegate type, and any instance of this delegate can only point to methods that have the exact same signatures. So now we can go back to this guy and say, let's pass these three pieces of information to whoever this delegate is pointing to. We are invoking a delegate instance and we are passing one question for you all to think about and answer. ये हम कौन सी क्लास में बैठे हैं? स्टॉक टिकर। स्टॉक टिकर क्लास ये क्या कर रही है? कोई फंक्शन कॉल कर रही है क्या? कोई फंक्शन कॉल कर रही है? हाँ या ना? नो। फिर क्या कर रही है? कोई डेलीगेट इन्वोक हो रहा है, कोई डेलीगेट के इंस्टेंस को इन्वोक कर रही है। क्या इस क्लास को मालूम है कि मैं इस डेलीगेट के पीछे कौन सा फंक्शन है जिसको कॉल किया जा रहा है? नहीं। That is the beauty of abstraction. That's why delegates are used. It abstracts the publisher from knowing. The publisher doesn't care who the heck is behind this. Who wants to receive notifications? When you subscribe for a magazine, the magazine wala doesn't care or doesn't know personally कि हाँ आनंद बाजार पत्रिका वाला बैठा हुआ है वहां की आपके घर भी आनी है, आपके घर भी आनी है, आपको फोन करके पूछ रहा है कि आपकी आई कि नहीं, अभी कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी। Doesn't care. It's your job to subscribe and get notifications. So the publisher doesn't care who is behind this wall. Okay? So let's pass the name of the company, which is the name property of this class. है ना? The old price कहां से लाएं? है ही नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए? प्राइस चेंज करने से पहले एक वेरिएबल ले लेना चाहिए, पुरानी प्राइस को उसमें डाल देनी चाहिए और नई प्राइस अब इसमें आ गई, तो हम ओल्ड प्राइस को पास कर सकते हैं और न्यू प्राइस विल बी द करंट प्राइस। देखो समझो, जो इसलिए मैं कहता हूं समय, यूजुअली हम क्लासेस में फटाफट लिख के भगा देते हैं, बस समय चाहिए कोई भी चीज सीखने के लिए। देखो इसको समझो, सोचो, और कोई सवाल है तो पूछो। अब एक चीज और, जो फंक्शन जिसे कॉल करते हैं जो सब्सक्राइबर है,
उसको भी नाम अच्छा सा देना चाहिए, है ना। अगर मान लो ये इंडस्ट्रियल कोड होता और कोई देखता और उसमें लिखा होता कॉल मी, उसको क्या पता चलता कि किस लिए बनाया हुआ है। तो हमेशा एक थोड़ा कन्वेंशन ये भी है, जब भी हम कोई सब्सक्राइबर या लिसनर क्लास में कोई मेथड लेते हैं जो कि लिसनर है, यानी कि जो इंटरेस्टेड है इन बीइंग कॉल्ड, उसको नाम करने का एक कन्वेंशन होता है। उसको वैसे कोई भी नाम दे सकते हो, उसके कोई खास रूल्स नहीं है, लेकिन अच्छा ये रहता है, कन्वेंशन है, रूल्स नहीं है, कि उसका नाम हम ये रखें प्राइस चेंज्ड हैंडलर। जो हुआ हैंडलर, जो चीज हो रही है उसका ये हैंडलर है ना, तो प्राइस चेंज, इसका नाम बदल के प्राइस चेंज्ड हैंडलर रख देता हूं मैं। और मेन में भी जाके हमें इसका नाम बदलना होगा। And now it makes sense, tells you the price. Now the more I change after this association, इस association के बाद कभी भी if anything happens to the price, for each of these, without doing anything, we're going to get a notification. Maximum cost of project development is in figuring out what the code does, and that is because most programmers don't take time to name things properly.